أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت شکر احسان ہے. کیسے تیاری ہوئی آپ لوگوں کی؟ جی لگ تو رہا ہے کہ ہے تیری. یہ وقت بتائے گا. نہیں، اگر آپ سب لوگوں نے اس ٹیسٹ کے لیے ایک بار پڑھا ہے تو آپ سب ٹیسٹ میں اس ٹیسٹ میں 100% ہیں. مقصد ٹیسٹ کا ہے کہ آپ لوگ پورے پورشن کو ایک بار اچھی طرح دیکھ لیں. آنسر صحیح غلط ہونا وہ نہیں ہے، تو بالکل ریلیکس ہو کے رہیں کلاس میں. اور جب جو ایک بار آنسر نکل جائے تو پھر اس کو صحیح نہیں کریں، جسٹ لیو اٹ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات رہے گی. اس کے بعد ہم کسی دوسرے کو آنسر کرنے دیں کہ جس سے آپ پہلی بار میں ہی آپ کی پوری کوشش ہو کہ ہم صحیح لفظ منہ سے نکالیں. تو شروع کرتے ہیں. میں ذرا اسکرین شیئر کروں. جی ہاں، چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں. اور شروع کرتے ہیں گروپ 5 سے. تو گروپ 5 کی لڑکیاں اٹینٹیو رہیں. میں ایک ایک کر کے آپ کا نام بلاؤں گی اور آپ اپنے مائک انمیوٹ کرتی رہیں اور آنسر کرتی رہیں. کوئی سوال سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لیجیے گا. میں نے اقرا کو ہوسٹ بنایا ہوا ہے. اگر کسی کا غلطی سے مائک میوٹ کرنا کوئی بھول جائے یا انمیوٹ ہو جائے تو پلیز آپ کیئرفل رہیے گا، مائک میوٹ کر دیجیے گا ان کا. میں نے ابھی کس گروپ کا نام لیا؟ گروپ 5. جی میم. جی چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ. میں نام پہلے بولوں گی، کوشچن بعد میں بولوں گی. تو گروپ 5 سے آ جائیں رابعہ اسلم. یہ دیکھیں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں کہ فعل کی تقسیم ڈفرینٹ لحاظ سے آپ کو نظر آ رہی ہے. تو رابعہ بتائیں گی کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کو کتنے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ان کا نام بتا دیں. مجھے رابعہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. حفصہ آپ بتائیے. حفصہ کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. انیس آپ ان لوگوں کی مارک کرتے جائیں. اس کے بعد سلمہ جبین آپ بتائیے کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کو کتنے گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے. میم ایک تو ماضی، مضارع. جی سر میرا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. جی میم، ماضی اور مضارع اور تیسرا گروپ کیا ہے؟ میں بتاؤں؟ نہیں، بس جن کا نام لیا گیا ہے وہی بتائیں گے. سعیدہ، حفصہ، ان کا کر دیں 2 ٹک اور ایک نہیں، سعیدہ حفصہ نہیں، سوری، یہ سلمہ ہے. اور ایک وہ عشرت بتائیں گی تھرڈ گروپ. یہ ماضی اور مضارع ہے میم. چلیں، عشرت کا بھی رانگ ہو گیا. شمیم بتائیں گی. میم زمانے کے اعتبار سے فعل کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: ماضی، مضارع اور تیسرا ہے امر و نہی. ویری گڈ. تو زمانے کے لحاظ سے فعل کو 3 گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے: ماضی، مضارع اور امر اور نہیں. یہ تھرڈ گروپ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. شمیم. سعدیہ بتائیں گی کہ مفعول کی ضرورت کے لحاظ سے فعل کو کتنے گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے. جی، مفعول کی ضرورت مفعول کے حساب سے فعل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: جی لازم اور متعدی. جی ویری گڈ. لازم اور لازم اور متعدی. متعدی. ویری گڈ. آنسر صحیح ہے، ان کے دونوں آنسر صحیح ہیں. ایک منٹ. طیبہ بتائیں گی کہ لازم سے کیا مراد ہے، فعل لازم سے کیا مراد ہے. طیبہ. شازیہ آپ بتائیے.
मैं बता दूं? नहीं, बस जिनका नाम लिया जा रहा है वो। शाजी आप बताइए। अनमोल आप बता दीजिए, फेल लाजिम से क्या मुराद है? वो फेल जिसमें मफूल की जरूरत ना हो। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है। वो फेल जिसका मतलब वाज़ेह होने के लिए किसी मफूल की जरूरत ना हो, विदाउट मफूल उसका मतलब क्लियर हो। जैसे वेरी गुड अनमोल। जलसा। जलसा, एग्जाम्पल भी इन्होंने दे दिया, जलसा वो बैठा। वेरी गुड। रुबाब आंसर करेंगी कि चले मुतअद्दी तो अब उसी का ऑपोजिट हो जाएगा। रुबाब बताएंगी कि तादाद हुरूफ के लिहाज से कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? तादाद हरूफ के हिसाब से 2 में मैम। जी हाँ, पहले आंसर। मुअत्तल जी हाँ, आंसर पहले कीजिए मुअत्तल सवाल। बिल्कुल सही है आपका आंसर कि 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उन दोनों ग्रुप का नाम भी बता दीजिए। पहले मुअत्तल और पहले सही। नहीं, आंसर गलत हो गया। चले अगली लड़की को लेते हैं, कोई बात नहीं। और रुबा, आपका पहला सही था कि 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लेकिन नेक्स्ट 2 आंसर तो 1 टिक 2 रॉन्ग। अम्मारा बताएंगी कि तादाद हुरूफ के लिहाज से जो 2 ग्रुप हैं उनके नाम क्या हैं? मैम सलासी और रबाई। ये भी आंसर गलत हो गया। अब बताएंगी सामिया। सलासी मुजर्रद और सलासी मजीद फीही। वेरी गुड। सलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी, ये 2 ग्रुप हैं तादाद हुरूफ के लिहाज से। मैम रीथिंक। जी, एक दफा सोचिए दोबारा। तादाद हरूफ के एतबार से मेन बतानी है ना, अभी हमने सुलासी की नहीं बतानी, मेन मैम बतानी ये है। तो सलासी के हो गए ना, कि सलासी में फिर हो सलासी और सलासी मजरद और सलासी फी वो। मैम ये तादाद हरूफ में तो रबाई और सलासी नहीं है, 2 आप लोग तादाद जी हुरूफ को तादाद रूट लेटर से कंफ्यूज कर रही हैं। जो अच्छा। रूट लेटर, नंबर ऑफ रूट लेटर के हिसाब से सुलासी और रुबाई है। उन अफाल में जिनमें सिर्फ 3 रूट लेटर्स होते हैं उन्हें सुलासी कहते हैं, जिनमें 4 रूट लेटर्स होते हैं उन्हें रुबाई कहते हैं। वो है तादाद रूट लेटर्स कह सकती हैं आप, लेकिन तादाद हुरूफ के हिसाब से फिर 2 हैं, वो सुलासी के ही दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों में ही रूट लेटर्स के नंबर फिक्स हैं, दोनों ही 3-3 है। आप क्लियर हो गई? जो लोग कह रहे हैं कि तादाद हुरूफ में वो सुलासी और रुबाई कह रहे हैं, ये पॉइंट उनका क्लियर हुआ? ये अभी जी भी क्लियर मैम। नहीं? कि सुलासी में फिर 2 जो ग्रुप बने हैं, सुलासी मुजर्रद के और सुलासी मजीद फी के, वो ऐसे बने हैं कि माजी की गर्दान में उस फेल की, अब सुलासी में आ जाएं आप जिसमें सिर्फ 3 रूट लेटर्स हैं, रुबाई को एकदम भूल जाएं, 4 लेटर वाले अब आपके निकल गए रूट लेटर्स वाले। माजी की गर्दान में वाहिद मुजक्कर गायब के सीगे में अगर सिर्फ 3 हुरूफ हैं तो वो सुलासी मुजर्रद कहलाता है, और माजी की गर्दान में वाहिद मुजक्कर गायब के सीगे में अगर आपको 4 हुरूफ नजर आए, हालांकि रूट लेटर 3 ही होंगे, तो वो होगा सुलासी मजीद फी। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं इस वक्त आपका टेस्ट लेने दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। ये बात क्लियर हो गई सबको या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? अब आ जाए ताहिरा और ग्रुप 5 की ही। ताहिरा बताएंगी नेक्स्ट सवाल कि फाइल की मौजूदगी के हिसाब से कितने ग्रुप में डिवाइड है? मैम 2 ग्रुप में फेले मारूफ और फेले मजहूल। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि फेले मारूफ और फेले मजहूल, आंसर सही है इनका। उसके बाद ग्रुप 5 की सारी लड़कियां हो गई और इसके बाद लेते हैं ग्रुप 3 की गर्ल्स को। मैम जी मेरा नाम तो नहीं लिया अभी। आपका नाम क्या है? राबिया। राबिया, आपका नाम आया था, अच्छा आ चुका आपका नाम। वो मेरे तो शायद नेट नहीं था, मुझे नहीं आवाज आई लगता है। चलिए फिर अब एंड में लेते हैं, ठीक है? आप याद रखिएगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लूंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और अब ले लेते हैं ग्रुप 2 को। ग्रुप 2 में आ जाए, शुरू करते हैं महविश से। महविश बताएंगी कि हुरूफ इल्लत कितने हैं?
मैम हरूफ इल्लत 3 है, वाव हमजा वाव अलिफ और या। ठीक है, वाव अलिफ और या। चले, इसको ये भी सही है आंसर, इनको सही मार्क करें। लेकिन हुरूफ इल्लत हमने बताए हैं सिर्फ 2, वो है वाव और या। अलिफ जो है वो किसी वजूहात की वजह से ये वाव और या ही अलिफ में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको काला में अलिफ नजर आता है ना, हालांकि वो था कवला, वाव ही था वो जो अलिफ में चेंज हो गया। वो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा एडवांस ग्रामर करेंगे तो आपको बताया जाएगा। इनका आंसर सही मार्क करें बिल्कुल, क्योंकि किताब में ऐसा ही लिखा हुआ है कि वाव अलिफ और या, ये 3 हुरूफ इल्लत किताब में लिखे हुए, मैंने आपको बताए थे 2, वाव और या। तो कोई वाव और या बताए वो भी सही है, और कोई अगर इस लेवल पे बता देगा वाव अलिफ और या तीनों बता देगा तो वो भी सही है। जज़ाकल्लाह खैर। हमें लगता है कि आंसर आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे होंगे इन लोग के। वो अभी किसने आंसर किया? महविश, आपने किया ना महविश? जी मैंने जी। किया। महविश के बाद आ जाए मेहरुन्निसा, और वो करेंगी। जी, आपको दिख रहा है मेहरुन्निसा, आपको दिख रहा है एक मादा जो है सीन जीम दाल, ये बाब नून से है। आप इसका माजी मारूफ का सेगा बनाए, सिर्फ पहला, और फिर मुदारे मारूफ का बनाए, फिर मादी मजहूल का बनाए, और फिर मुदारे मजहूल का बनाए। नसरा मुदारे मारूफ, यंसुरु बस माजी आंसर हमने ऊपर का हेडिंग नहीं बोले, बस वर्ड बोले बेटा। सुजीदा युस जादू। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, ऑल 4 आंसर्स आर करेक्ट। उसके बाद चलते हैं हिरा के पास। हिरा, आप बता दें नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट मैम माजी का होगा आलामा, नहीं ये सामिया से आलिमा, सॉरी आलिमा। आंसर दे हिरा पहली बार, ठीक है, चले जी सामिया। सामिया, और इसका यालमु, ठीक है, तो सामिया का हो जाएगा आलिमा अलीमा। यालमु। बस ऐसे दिमाग में कर रही, मैं आलिमा सबके लिए बता रही हूँ इस वक्त। ये सीन दिखा ना आपको, तो सामिया यस्माउ, बस इतना निकाल लें दिमाग में, अच्छा बोल ही ले, और फिर उसके बाद बोले अलीमा या अलम। ठीक है, चलिए अब मादी मजहूल कर दें। युलमु, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं वो तो मुजारे का होगा। उलिमा, सॉरी मैम, उलिमा। जी, उसके बाद और मुजारे का होगा इसका युलमु। जी हाँ, युलमु, ठीक है। माजी मजहूल, और वो देखेंगे मजहूल में आप बिल्कुल बाब नहीं देखेंगे, फिर सिर्फ वजन देखेंगे। बाब आपको देखना है मारूफ में, ठीक है। देखते हैं कि आपका ये लोग, आपकी मार्किंग ये क्या करती हैं। हिरा, आपकी जो लगाने वाले इंचार्ज हैं। उसके बाद चलते हैं अब सदफ के पास। सदफ बिलाल बताएंगी नेक्स्ट। आता है, बिल्कुल आप यकीन करें कि मैं सही और गलत आंसर से आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर रही। मैंने पहले ही कह दिया कि आप लोगों ने अगर सारे पीडीएफ को इस टेस्ट के लिए किसी ने एक बार पढ़ा है, वो टेस्ट में 100% है। और अगर किसी को ऐसा लगा कि उसे बहुत आता है और उसने सोचा कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो 0% है। क्यों? क्योंकि मकसद इस टेस्ट को लेने का ये है कि आप पूरे पोर्शन से एक बार गो थ्रू हो जाएं, एक बार अच्छी तरह, एक विदिन 2-3 डेज आप सारे पोर्शन को अच्छी तरह देख लें। मकसद बिल्कुल भी ये राइट रॉन्ग की टिक जो आ रही है वो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ये बता देगी कि अभी थोड़ा हमको मेहनत करने की किसी और एंगल से जरूरत है। तो सिर्फ इसलिए राइट रॉन्ग की टिक आपको ग्रुप में आ रही है। नेवर, मतलब कि मैं बिल्कुल नहीं आपकी को जज कर रही हूँ, आप खुद अपने आप को इस तरह जज करके मेहनत करके अपने को नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह ले जाएंगे। तो हम लोग कर रहे हैं ग्रुप 2 की लड़कियों का क्विज, और अब हमने बुलाया था सदफ बिलाल को। सदफ बिलाल, आप नेक्स्ट वाला कर दें। सदफ नहीं, सदफ आई थिंक नहीं है, सदफ नहीं है। चलिए सानिया आप आ जाएं। सानिया भी नहीं है। अच्छा, चलिए इन लोग की बस क्रॉस लगाती जाए, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये लोग क्विज में नहीं। सुरैया आप आ जाइए प्लीज।
सुरैया भी नहीं, जी तैयबा, मैम सुरैया आ गई? मैम क्लास में जी जी मैम इसका होगा कबरू। ठीक, ये काफ बा रॉ का बनाना है ना मैम? हाँ काफ बरा से बनाना है और बाप काफ है। तो इसमें गायब मुजक्कर और ये वाले बनाने हैं, जैसे जी हाँ, माजी का कबरू नहीं कबूरा। बोले आपने बोला कबूरा, ठीक है, लेकिन आपका पहले आंसर गलत था, आपने पहले कुछ और बोला था, ठीक है। अब जी जी मुजारे मारूफ की बता दें, बाद में आपका सही हो गया। यकबुरु। जी हाँ, ये सही है। मादी मजहूल, जी इसमें कंफ्यूज हूँ मैं, जी इसमें कंफ्यूज हूँ मैं। क्या कंफ्यूज हैं आप? मतलब इसका इसका वजन आपको याद नहीं है? मजहूल का वजन नहीं याद है आपको? कबूरना, कबूरना होगा ये। चले अब मुजारे मजहूल का भी आंसर बता दें। तकबुरु। चले किसी और से पूछ लेते हैं ये दोनों, ठीक है। तो इनका जो है फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड, सेकंड सही है और थर्ड फोर्थ फिर गलत है। तैयबा आप आ जाएं और इसको सही करें, मजहूल का कबूरा का मजहूल का करें। तैयबा नहीं है? निदा असलम आप नहीं आ जाएं और काफ बारा बाप काफ से सिर्फ मजहूल के 2 वर्ड दें मुझे। निदा भी नहीं है? अनीका, जी मैम मजहूल के बताने हैं ना? आप कौन बोल रही हैं? अनिका। जी हाँ, अनीका मजहूल के बताने हैं। हाँ जी कुबिरा फुइला कुबिरा हम्म, युफालु युकबारू। चलिए इनके भी दोनों गलत हो गए। अब अनीला बताएंगी। जी मैम। मैम मजहूल काफ की बस का बता दें मुझे। मजहूल। जी जी, मैम। काफ का माजी मजहूल होगा कुबीरा, हम्म, और मुजारा मजहूल काफ का नहीं है मैम। क्यों नहीं है? मैम आपने बताया था कि काफ का मुजारे मजहूल बनेगा ही नहीं। वेरी गुड। तो इनका सेकंड आंसर सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। अच्छा, मादी मजहूल आपने कैसे बना लिया, उसका बताया था, बनेगा क्या? नो मैम, उसका भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, लेकिन मजहूल में पहले काफ आपने, का बनेगा ही नहीं। जी हाँ वेरी गुड, लेकिन आपने बना दिया था ना पहला वाला। तो इसका सॉरी। आंसर जब मैं पूछ रही थी तो बस क्लियर हो के आप कहें कि बाप काफ का मजहूल होता ही नहीं, तो मादी होता ही मजहूल भी नहीं, ब्लैंक होगा और मुदारी मजहूल भी ब्लैंक होगा, ठीक है। ब्लैंक होगा। जी मैम। जी जी वेरी मैम। गुड। मजा आ रहा है क्विज में? जी मैम बहुत मजा आ रहा है। ठीक है। तो अगर वहां पे कुछ चीज पूछी जा रही है, यू शुड बी सो कॉन्फिडेंट कि आप कहें नहीं ऐसा होगा ही नहीं, मजहूल होगा ही नहीं, बनाने ना लग जाए बैठ के, ठीक है। चलिए वेरी गुड। आपको मुदारे में तो जी भूल गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अरे सॉरी माजी में, लेकिन मुदारे में वो पॉइंट आपको याद आ गया। चलिए ठीक है, लेते हैं अनीला, इसके बाद फातिमा को। फातिमा करेंगे नून आइन मीम और बाब हा। बाब हा है तो हसीबा यहसीबू, तो इसका होगा नुइमा युनइमू, और इसमें माजी नहीं नहीं मजहूल और नहीं नहीं, मुदारे मजहूल का आपने होगा पहला वाला आपका रॉन्ग हो गया, मादी में आपने एक हरकत गलत लगा दी, इसलिए आप फिर से करें। हसीबा यहसीबू, यानी नुइमा यनइमू। ये बताइए नो क्यों हो रहा है, नो क्यों हो रहा है? आपने कहा हसीबा और फिर आप करिए नुईमा। यनइमू। नहीं, आप समझ नहीं रही। आपने बोला हसीबा यहसीबू ना, फिर आप जी करिए नुईमा, नून के ऊपर आप पेश लगा रही हैं। हसीबा नुइमा, सॉरी, हसीबा नुइमा, और फिर यहसीबू यनइमू। आप मेरा सुने, आप सुने कि आप क्या जी बोल मैम। रही हैं। आप कह रही हैं हसीबा, और जब इसी गर्दा इसी वजन को इस पे डाल रही हैं तो आप कह रही नुईमा। हा के ऊपर जबर है तो नून के ऊपर जबर होगी ना, हसीबा नुइमा, ठीक है। फिर आप नुईमा कह रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैम नुइमा, नून से में, आइन से ए, मीम से बरमा, हसीबा से हाँ तो अब हसीबा से, अब नुइमा।
चलिए ठीक है, इनका फर्स्ट वाला गलत मार्क करें और सेकंड वाला करें, मुदारे मारूफ करें। मुदारी मारूफ का है यहसीबू है तो यनइमू। वेरी गुड, ये सही है आपका, सेकंड सही है। अब चलिए और मजहूल भी बनाएं। फ़ुइला से होगा ये नुइमा और युफ़अलु से होगा युनअमु। वेरी गुड, ये दोनों इनका सही है। इनका जो है मादी मारूफ भी बार बार मजहूल हो जा रहा था, तो बस फर्स्ट वाला गलत है, बाकी तीनों इनके सही हैं। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में अपना आंसर सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, ठीक है फातिमा। चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर किया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ट्राई किया। गजाला आ जाए और वो करेंगी नेक्स्ट वाला। जी मैम, कौन सा मैम? रफा? जी, रफा आइन और बाब फा। जी, ये है रफा यारिफू। फर्स्ट फा से सही है ना, है, फतह यफ्तहू से। हाँ फा फर्स्ट इसका सही है, बाब है। सेकंड गलत हो गया आपका। एक बार आप सही करके आंसर दे दें, लेकिन अब तो गलत हो चुका। चलिए सही करके बताएं। यारिफू। यारिफू कैसे होगा? अभी आप कह रही हैं फतहा यफ्तहू, तो माशाल्लाह पोइट्री तो याद करा ले गए और याद कर लिया आपने, लेकिन उसी वजन को जब डाल रहे हैं रूट लेटर्स पे तब गलतियां हो रही हैं। ठीक है, जैसे कह रही है ना गजाला आप, फतहा यफ्तहू। अब आप देख लें कि रफा यरफाऊ, ये सारी हरकतें यरफा। वही सेम लगेंगी। ठीक है, हरकतें चेंज नहीं करें नए जी। रूट लेटर के साथ। चलिए शाबाश, एक बार करें, लेकिन जो जो नोट कर रहे हैं वो नोट करें कि फर्स्ट बार में जो आंसर सही गलत वही लिया जाएगा। गजाला ट्राई करें अगेन। रफा यारिफू। नहीं, रफा यरफाऊ, एकदम यारी यारी ऐसे नहीं, यारी ऐसे नहीं, यरफाऊ। रफा हाँ, यरफाऊ। वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए मजहूल बनाए। मजहूल बनेगा? रफा का तो बनेगा, सिर्फ जी, काफ का क्यों नहीं। बनेगा? फतह क्यों बनेगा? यफ्तहू है ना, जी, क्योंकि काफ का आपने बताया कि काफ का माजी मजहूल जी और हाँ, काफ का जारी नहीं बनता, बाकी सब का बनेगा। जी हाँ, बाकी सारे बाब वाले अफाल का मजहूल बन जाएगा। चलिए शाबाश, बना दे। फोइला के वजन, फोइला यफअल। योरिफू। जी, योरिफू। चलिए गलत हो गया, सेकंड वाला लीला। ट्राई कर लें। यार युफरफू। इकरा रानी बता देंगी। रुफिया युरफाउ। हाँ, रुफिया युरफाऊ। ठीक है, रुफिया युरफाऊ, इन्होंने इकरा ने एकदम सही बताया। और उसके बाद लेते हैं अब ग्रुप 4 को। ग्रुप 4 में जाजिया है? नहीं मैम। चलो, जाजिया नहीं है। मदिया काशिफ? जी मैम। हाँ मदिया मैम आप बोलिए। सबरा मैम बाब दुआत से है, दाराबा यदरिबु, सबरा यस्बिरु, सुबिरा युस्बरु। वेरी गुड माशाल्लाह, इनके चारों सही हैं, बहुत ही अच्छा बताया। और उसके बाद इनके बाद मदिया के बाद आ जाए मरियम अमीर, और वो लास्ट वाला कर दें। मैम ये नसरा यंसिरु और इसका रजा का। नहीं, पहले आपका यही गलत हो गया जो आपने शुरू का बताया, उसको सही करें। नसरा यंसिरु। चलें अब इसका बना दें, रज़ाका का बनाए। रजा का, रजा का और यज़हबु, रजा का, रजा का और मदारी यज़किरु। हाँ, इनका वो फर्स्ट सही है इनका, और सेकंड रॉन्ग कर दे। मैं दूसरे को बुलाती हूँ और आप गौर से सुनिए मरियम की वो क्या बता रही हैं। महक आ जाएं और वो बताएं। जी मैम, इसका है राज़ाका यरज़ुकु, वेरी गुड। रूज़िका हाँ, युरज़क़ु। वेरी गुड माशाल्लाह, चारों सही है। देखें किनका नाम लिया था? मरियम।
یہ ہے باب نون. آپ کو باب نون کی پوئٹری آج پڑھنی ہے 21 ٹائمز. نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو. اور میں بار بار کہتی ہوں کہ اوٹ کو خوب گول کر کے پیش نکالیں کہ وہ کہیں زبر اور زیر کی طرف بھاگنے ہی نہ پائے. نصرہ ینصرو، ینصرو نہیں ہوتا، نصرہ ینصرو. اوٹ ایک دم گول کریں. تجوید کا رول میں بتا رہی ہوں کہ اتنا اوٹ پیش پہ گول ہونا چاہیے کہ صرف ایک پینسل کے جانے کی گنجائش ہو، اس سے زیادہ نہیں. تو پھر آپ کو ہمیشہ نصرہ ینصرو ہی یاد ہوگا، رزق یرزقو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مریم آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور آپ 21 بار پڑھ کے نصرہ ینصرو کو مجھے آڈیو کریں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آڈیو میسج کریں گی. جزاک اللہ خیر مہک. رابعہ کا تو ایگزام ہے. سبیہا آ جائیں اب اور وہ کریں گی نیکسٹ. یہاں پہ دیکھیں آپ کو گردان دکھ رہی ہے. اب میں آپ کو دیتی ہوں کوئی ورڈ اور میں سمپل ہی ورڈ دوں گی، کوئی ایسا نہیں بس یہ باپ والے ہی الفاظ دوں گی، کوئی نیا نہیں دے رہی ہوں. اور صرف آپ کو 6 بنانے ہیں. جیسے اگر میں کہہ رہی ہوں غائب کی گردان بنائیں تو صرف یہ فرسٹ 2 کالم دے دیں مجھے. اگر میں کہوں حاضر کی بنا دیں تو یہ صرف 3rd اور 4th دے دیں. اور اگر میں کہوں متکلم کی بنا دیں تو صرف یہ 2 الفاظ مجھے دے دیں. اس طرح سے آپ کو یہ گردان کرنی ہے. چلیے اب آپ کو کرنی ہے ماضی کی گردان. میں نے نام لیا ہے، ہاں جی نام لیا ہے سعدیہ، سبیہا کا، سبیہا احمد. آپ کریں سمیعہ کی گردان، سین میم عین کی گردان کریں صرف غائب کی. سبیہا نہیں ہے تو سعدیہ کریں. میم جی کون میم سی سوری میرا غلط ہاتھ لگ گیا تھا. سعدیہ جی ہے. آپ کون بول رہے میں ہیں؟ بتاؤں. جی جی میں سعدیہ بول رہی ہوں میم. جی ہاں سعدیہ کریں. سمیع سمیع واحد ہوگا. سمیع سمیع سمیعو. اور مونس بھی بتانا میم، پوری گردان بتاؤں؟ نہیں بس یہاں 6 الفاظ غائب کے بس. اچھا ٹھیک ہے. مونس میں ہوگا سمیعت سمیعتا سمیعنا. ہاں اس کو جو ہے نا جب یہ پڑھیں گے آپ صحیح ہے ان کے بس لکھ دیں جو دکھ رہی ہیں گروپ میں 6 ٹک. سمیعتا کو تھوڑا سا وقت دے کے جس سے سکون نہ لگے زبر لگے. ٹھیک ہے تو ایک دم صحیح ہے ان کا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں نے بتایا الحمدللہ. اس کے بعد سعدیہ کے بعد لے لیتے ہیں شمائلہ کو. اور شمائلہ کریں گی کروما کی گردان اس کی حاضر کی. حاضر کی جی کرو کرمتا کرمتما کرمتم کرمتی کرمتما کرمتنا. ویری گڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کیا. ویری گڈ. دونوں بچیوں نے بہت ہی اچھا کیا گردان یہاں پہ جبکہ ہم بیچ میں سے پوچھ رہے ہیں. اور آپ کو ہم دیں گے صرف روٹ لیٹر جو آپ کے ف ضاد نون، ہم باہر سے الفاظ نہیں دے رہے ہیں جس سے آپ آسانی سے کر سکیں اس کو. اس کے بعد لے لیتے ہیں سنبل کو. اور سنبل کریں گی حاضر کے اور متکلم کے. یہ اتنے کریں گی یہ سنبل. سمیع کا فاتحہ سے کریں. مذکر اور مؤنث. یہاں سے شروع کریں آپ. یہاں سے شروع کریں. آپ کو کرسر نہیں دکھ رہا ہے میرا؟ حاضر مذکر سے. واحد فتحت فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحتو فتحنا. جی فتحت فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحتو فتحنا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں واپس یہاں آؤں کچھ دوسرے سوال لے لوں. آمینہ فہد آپ بتائیے یہ 6 ابواب یہاں کون سے تھے؟ ان کے بس ایبریویشن الفابیٹ چاہیے، حروف چاہیے. آمنہ نہیں ہے. انیس فاطمہ آپ بتائیے. میم فا ضاد نون سین ہا کاف. ویری گڈ بالکل صحیح انہوں نے بتایا. فا ضاد نون سین ہا کاف. یہ ہیں 6 ایبریویشن آپ کے باپ کے. ٹھیک ہے اس کے بعد انیس رانا بتائیں گی. یہ پوئٹری انیس رانا سنائیں گی. فتح یفتح
ضرب يضرب نصر ينصر سمع يسمع اور حسب يحسب كرم يكرم. वेरी गुड. करुमा यकरुम, इनका सब सही है. तो शी हैज, बस लिख दे 12 टिक्स. 12 टिक ना बनाए फिर, वरना टिक ही बनाते रह जाएंगे हम. ये देखिए, ये इन्होंने बताया आंसर ये है. ठीक है, ये मुझे चाहिए था और दोनों बच्चियों ने माशाल्लाह एकदम सही बताया. देखिए, याद करने से और खासकर क्लास में जो चीजें याद की है, मैं ये देख रही हूँ कि लेकिन काश कि मुझे 1 घंटे के बजाय 6 घंटे मिलते तो आपको घर में किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे हर हाल में चाहिए कि आप में से हर कोई 1 घंटा मुझे जरूर दे, और इससे कम के लिए मैं तैयार नहीं होंगी. आज आपके पास आएगा मेरी ये रिक्वेस्ट कि 1 घंटा मैं आपका यहाँ पे लेती हूँ या देती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन 1 घंटा मुझे आपका चाहिए, आपकी सेल्फ स्टडी का. वो आपको हर हाल में निकालना होगा, हर हाल में निकालना होगा, अगर आप चाहती हैं कि वाकई आपको कुरान इस ग्रामर के कोर्स के बाद समझ में आए. वरना आप एग्जाम में तो पास हो जाएंगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ. अगर आपकी नीयत ये है कि मैं तालीम दीन का सर्टिफिकेट ले लूं और ये मुझे पता चल जाए मैंने ग्रामर का एग्जाम पास किया है, उसके लिए आप किताब बिल्कुल ना खोलें. मैं गारंटी लेती हूँ कि आप 90 to 100% नंबर वहां ले आएंगी. लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी कुरान समझ में आए, तो आपको हर हाल में एट एनी कॉस्ट, फिर उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहूंगी और कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहूंगी कि आप मुझे 1 घंटा कम से कम, ये मिनिमम है. मैं जो बता रही हूँ ना, 1 घंटा मिनिमम है, वो किसी भी तरह आप निकालें. अगर आप चाहती हैं कि कुरान आपको समझ में आए, ये आप जो तर्जुमे याद करती है रट्टा मार मार के, ये आपको भूले ना, वरना 5 साल बाद हम एक ब्लैंक स्लेट की तरह फिर पड़े होंगे. तो 1 घंटा जरूर देना है. वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, और जाहिर है एक चीज को सही तरीके से, ये कुरान का मामला है, ये आम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिख देंगे तो सिर्फ नंबर ही चला जाएगा और कुछ नहीं होगा. नहीं, यहाँ हम मसले हमारे आखिरत तक चले जाएंगे, इसलिए और भी मामला सीरियस है. चले शाबाश. यहाँ पे देख रही हैं आप कि मादा ये दिया हुआ है शीन हा दाल, ठीक है, और बाब दिया हुआ है सीन, और यहाँ सिर्फ आपको एक सेगा बताना है. इन सब का पहला सेगा बताना है, ठीक है. और हम लोग कर रहे हैं, अभी तक हमने किया है, हमें लगता है इकरा हुसैन का नंबर है. इकरा हुसैन, आपके पास है शीन हा दाल और बाब है सीन. इसका आप सिर्फ हमें मादी मारूफ का सेगा दे दें. इकरा आप हैं? इकरा लगता है नहीं. अब चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ, और वो है ग्रुप 1. ग्रुप 1 में आ जाए शमीम, और वो देंगी हमको फर्स्ट आंसर. जी मैम, इसमें है शुहिदा. इनका आंसर गलत हो गया, और लेते हैं अब सायरा खालिद. मैम शाहिदा. वेरी गुड. ये बाप सीन से था, समिया मादी मारूफ का सेगा, तो ये होगा शहीदा. वेरी गुड. उसके बाद ले लेते हैं महविश मुकीद. ये करेंगी बा आइन दाल बाब काफ मुदारे मजहूल. मैम ये बाब काफ से बिलोंग करता है, तो इसका मुदारे मजहूल नहीं होगा. बिल्कुल आंसर सही है इनका. वेरी गुड, वेरी गुड. चले, रज़ाका बाब नून माजी मजहूल. नाम नहीं लिया मैंने, अच्छा सॉरी. महविश ने आंसर कर दिया. जी मैम. ठीक है, गजाला आ जाए ग्रुप 1 से. गजाला नहीं है. फरानाज आप बता दें. रज़ाका बाबनून माजी मजहूल. फरा भी नहीं है. ईशा आप बताइए. ईशा भी नहीं है. अस्का आप बताइए. रज़ाका. आंसर गलत हो गया. अब सही आंसर बता दें उस्मा अनवर. रोज़ेका. वेरी गुड. आप सवाल कर रही हैं या जवाब दे रही हैं? जवाब दिया आपने, मैं लेकिन जवाब दे रही अंदाज हूँ. सवाल का था. सही रोज़ेका. है. जी हाँ, सही है. चले नेक्स्ट करेंगी ज़ैनब फ़खर. जी लाम बाब फाते है जाला, सॉरी मुजारे है, सॉरी या जालू. क्या नंबर आते हैं आपके? ठीक है. फतहा यफ्तहू, तो इन्होंने बाद में सही बताया. ये चलो ठीक है. ये है ज़ैनब. अच्छा, जरताशा आप करें नेक्स्ट. जरताशा नहीं है. बाजला आप कर दीजिए प्लीज नेक्स्ट. बाजला
व लाम मीम भाव दाद से, मादी मारूफ। यहाँ पे हमने ऐसे उल्टा आ गया, पता नहीं को प्रिंट होके। मादी मारूफ का बताएंगे, बाजला नहीं है। तो अब ग्रुप 3 से अकीला करेंगी, अकीला खानम। ग्रुप 3 कर चुके हैं? नो मैम, कौन सा करना है मैम? ये व लाम मीम, इसका माजी मारूफ कौन सा मैम? सॉरी, लाम मैम का क्या करना है? मारूफ माजी ये वाला? जी हाँ, आप जी, जालमा मैम, जालमा नहीं, दाराबा ना, दाराबा से जालमा, जालमा। जी हाँ सही है, मैंने सुन लिया, सही है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद अकीला के बाद फरा आ जाए। दाल का फरा से बाबनून, और इसका मुदारी मजहूल बना दे। जी बाजी, यूज करूँ। वेरी गुड, यूज करो, माशाल्लाह, वेरी गुड। उसके बाद अभी आप फरहाद, आपने आंसर किया है? जी बाजी। फातिमा शौकत, आप आ जाएं और लास्ट वाला कर दीजिए। जी मैम, मैम इसका है यखरामू, यखमारू। अच्छा एक मिनट, मैम इसका है यरहामू। इन्होंने बताया यरहम, ठीक है, जज़ाकल्लाह फातिमा। उसके बाद हुरैन बताएंगी कि फेल लाजिम किसे कहते हैं। जरताशा, अब तो आपकी चांस चली गई, फेल लाजिम किसे कहते हैं? फ़ेल लाजिम, अभी वो फ़ेल जिसमें एक मिनट, फ़ेल लाजिम फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल लाजिम जिसमें फ़ाइल जो है वो मज़कूर हो। फेल लाजिम वो है जिसमें मफूल की जरूरत ना हो, ठीक है। चले, इनका गलत हो गया, लेते हैं जी। मरियम नईम, आप बताइए नेक्स्ट मफूल किसे कहते हैं? मैम फेले मारूफ वो फेल जिसमें फाइल मौजूद हो। जी हाँ, वेरी गुड, जिसमें फाइल मज़कूर हो। फाइल तो मौजूद होता ही है, बिना फाइल के कोई काम होता नहीं है, लेकिन आंसर इनका सही है, उनका आंसर सही कह दिया जाएगा, क्योंकि किताब में ऐसे ही लिखा है, मज़कूर हो, ठीक है, जिक्र किया गया हो उस जुमले में फाइल का। आंसर आपका दुरुस्त है। मरियम नईम थी, जज़ाकल्लाह मरियम। याद कर लीजिएगा, आप मौजूद की जगह मज़कूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिक्र हुआ हो उसमें। फेल मारूफ की डेफिनेशन बताएंगी नवीदा अख्तर। नवीदा अख्तर नहीं है, समीना नाजिश। फेल मारूफ वो फेल जिसका फाइल ये मज़कूर फेल हो। मारूफ हो गया था, सॉरी, फेल मुतअद्दी बता दें, फेल मारूफ हो गया था। फेल मुतअद्दी वो फेल जिसको बात मुकम्मल करने के लिए किसी मफऊल की जरूरत हो। मफऊल, जी हाँ, जिसको अपना मतलब वाज़ेह करने के लिए किसी मफूल की जरूरत। एक एग्जांपल भी दे दें। मसलन द्वाराबा उसने मारा। जी हाँ, वेरी गुड, सही है इनका। फेल मोतल बताएंगी जहरा कलीम। जहरा कलीम एब्सेंट है। जी मैम। जहरा, आप बोल रही हैं? नहीं मैम, मैं रिदा हूँ, ज़हरा एब्सेंट है। अच्छा रिदा, चलिए आप बताएं फेल मोतल क्या है? मैम वो फेल जिसमें हुर्फ इल्लत, जिसके रूट लेटर में हुर्फ इल्लत मौजूद हो। जी हाँ, आवाज मेरे तक पहुंची नहीं। वो फेल जिसके रूट लेटर में कोई रूट लेटर में हुर्फ इल्लत मौजूद हो, वाओ या मौजूद हो। जी हाँ, वाओ या मौजूद हो, वेरी गुड, आंसर इनका सही है। ग्रुप 6 को ले लेते हैं हम। ग्रुप 6 में अफरोज बताएंगी अब फेल मजहूल किसे कहते हैं। अफरोज नहीं है, अम्मान अकरम, आप बताइए। अम्मान अकरम भी नहीं है। आयशा सज्जाद, फायजा भी नहीं है। फर्रुख, फेल मजहूल किसे कहते हैं? जी, इसमें बाजी ये जो जिसमें किया गया वो काम का पता चले कि जिसमें हो चुका होता है। जी, फिर से बोलो। वो फेल जिसमें काम जारी होता है, या आपने मुदारे मजहूल कहा बाजी? फेल मजहूल कहा बस मैंने, ये फेल मजहूल आपको ये बताना है। फेले मजहूल। चलिए इनसे मरियम असलम से पूछ लेते हैं। मरियम असलम, आप बताइए।
जिसमें फेल का जिक्र किया जाता है ना जी। हाँ नहीं, आंसर गलत है आपका। चलें देख लेते हैं मरियम क्या बताती। मरियम असलम नहीं मौजूद हैं। निदा अहमद आप बताइए फेल मजहूल से क्या मुराद है? कुरतुल्लैन? मैम वो फेल जिसमें फाइल मज़कूर ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। वो फेल जिसमें फाइल का जिक्र ना हो, फाइल मजकूर ना हो, उसे फेल मजहूल कहते हैं। वेरी गुड। फेल सलासी मुजर्रद, ये बताएंगी सहर। फेल सुलासी मुजर्रद किसे कहते हैं? सहर ने लीव कर दिया हुआ है। अच्छा सहर चली गई, ठीक है। तो हमें लगता है कि सारे ग्रुप सो गए, कोई ग्रुप बचा है? कोई ग्रुप बचा है तो प्लीज जल्दी मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। चलें, हमारे पास 5-6 मिनट बचे हैं, तो अब हम रैंडमली ऐसे ही बुलाते हैं। आई जस्ट स्क्रॉल माई स्क्रीन, किसी का भी नाम आ जाएगा तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है? या जो कुछ लोग थे ऐसे जो टाइम पे जिनका माइक अनम्यूट नहीं हुआ, वो अब अपने हैंड रेज कर लें। राबिया असलम, जी हाँ राबिया आप बताएं फेल सुलासी मुजर्रद से क्या मुराद है? जिसमें मादा के हरूफ 3 हो। आंसर पूरा हो गया? ये तकसीम माजी से मतलब जो होगी ना सलासी मुजर्रद की, ये तकसीम होगी जो पहले सीगे मतलब वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में मौजूद हरूफ के तादाद के हिसाब से होगी। हाँ। तो फेल सुलासी मुजर्रद से क्या मतलब है? आप सही बता रही हैं लेकिन बस आंसर बता दें। जिसमें फेल की तादाद 3 होगी वो। जी हाँ, हुरूफ की तादाद 3 होगी वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में। माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में हुरूफ की तादाद 3 होगी। आंसर इनका सही है। उसके बाद और कौन आएगा? हैंड रेज करें। चले इकरा रानी बताएं फेल सही क्या है? मेरी आवाज आ रही है? अब आई जी, वो फेल जिसमें तमाम हरूफ सही हों वो फेल सही कहलाता है। हाँ, कोई भी हुरूफ इल्लत ना मौजूद हो ना। वेरी गुड, आपका आंसर सही, तमाम हुरूफ सही हो। वेरी गुड। और इसके बाद बता दें मदीहा काशिफ, और बताती जाए हैंड नीचे कर लें। फेल मुदारी से क्या बता रहे यानी जिसमें प्रेजेंट टेंस आए और फ्यूचर टेंस है, 2 टेंसेस को इंडिकेट करता है। वेरी गुड। ये मदीहा काशिफ बोल रही? जी मैम। जी वेरी गुड। उसके बाद मेरे पास अपने यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है लेकिन हमारे पास 3 मिनट और हैं, तो मैं सवाल पूछती हूँ और आप लोग, मेरे पास 13 सवाल और हैं। मैंने सोचा था एक्स्ट्रा अगर मुझे चले ज़ैनब फ़खर बता दें फेल की डेफिनेशन बताएं। वो फेल जिसमें किसी काम को करना या होना पाया जाए और उसका ताल्लुक किसी ज़माने से भी हो, माजी हाल मुस्तकबिल से हो, फेल कहलाता है। वेरी गुड। हिरा बताएंगी फेल और मस्दर में फर्क क्या है? मस्दर किसी काम के नाम को कहा जाता है और फेल में जमाने का मफहूम पाया जाता है, यानी जमाने की मौजूदगी होती है फेल में। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बताएंगी अनमोल फेल अम्र किसे कहते हैं? वो फेल जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए। वेरी गुड। जैसे सदफ बिलाल बताएंगी कि हुरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? सदफ नहीं है मैम, क्लास में। अच्छा सदफ नहीं है, मैं फिर किनका नाम लूं? अच्छा मैं पार्टिसिपेंट्स को देखूंगी। चलिए फातिमा बीबी आप बताएं कि फेल वाव और या। अच्छा हुरूफ इल्लत, जी हाँ वाव और या। वेरी गुड, वाव और या हुरूफ इल्लत है। फातिमा ने बिल्कुल सही बताया। फेल मजहूल में ये बताएंगी हुरैन, फेल मजहूल में किसका जिक्र नहीं होता? फेल मजहूल में फाइल का जिक्र नहीं होता। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। अब बताएंगी हुरैन, आप अपना हाथ नीचे करें तो मैं दूसरे का नाम दिखे मुझे। जी हाँ गजाला बताएंगी कि नायबे फाइल किसे कहते हैं? जल्दी से गजाला, आंसर नहीं आता हाथ नीचे करें, मुझे दूसरा हाथ नजर आ जाए। मजहूल और आपका क्या पूछा मैम, दोबारा से रिपीट करें। नायबे फाइल किसे कहते हैं? ऐसा मफूल जिसका फाइल जाहिर ना हो नायबे फाइल कहलाता है, यही था, ऐसे था, मुझे याद किया हुआ था। नहीं ये नहीं। अम्मारा अमजद आप बताए दीजिए। ऐसा मफूल जिसका फाइल जाहिर ना हो नायबे फाइल कहलाता है, नायबे फाइल कहलाता है, ऐसे नहीं था, ऐसे ही था मैम। हाँ सही है आंसर सही है। जी हाँ, ऐसा मफूल जिसका फाइल जाहिर ना हो, ठीक है, वो नायबे
फाइल कहलाता है या नाइब, चलिए दूसरे तरह से भी आंसर किया जा सकता है, ठीक बताया आपने। नाइब, अब बताएंगी अम्मारा अमजद कि नाइब फाइल क्या होता है, फाइल होता है या मफूल होता है? फाइल होता है आंसर गलत। मैम, मफूल होता है और ये मरफू नहीं होता नहीं, है। अब तो वैसे आपके तो नाम, मंसूब होता है। अब आपके नाम के साथ तो फाइल अटैच हो गया, ठीक है, दूसरा कोई आंसर करेगा। चलिए क्लास इसी के साथ खत्म करते हैं। नाइब फाइल मफूल होता है और इसका एराब रफा का होता है। ये था अगला आंसर जिसका कि अब वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ क्विज करके बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले हफ्ते, और इस हफ्ते एक बार फिर सारे पीडीएफ को एक क्विक रीडिंग कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। आपके पास 12 पीडीएफ है, बस एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको जो है बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 घंटे से कम ही वक्त में आप सारी रीडिंग सारे पीडीएफ की कर सकती हैं, और ये जरूर करना है आपको। अल्लाह ताला आप सबके वक्त में बरकत दे। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।